آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب بیٹنگ کے فیب فور کو پوری دنیا جانتی ہے تو بولنگ کا فیب فور آج تک کیوں نہیں بنا؟ کیا واقعی اس دور میں صرف 4 ایسے بولرز موجود ہیں جن سے دنیا کے بہترین بیٹرز بھی ڈرتے ہیں؟ اور اگر آج ایک فیب فور سلیکٹ کرنی پڑے تو کیا جسپریت بمراہ اس لسٹ میں ہوں گے اور ان کے ساتھ باقی 3 کون ہوں گے؟ کیا مچل سٹارک، پیٹ کمنز اور جوش ہیزل ووڈ میں سے صرف ایک ہی اس فیب فور کا حقدار ہے؟ اگر ہاں تو کیوں؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا پاکستان جسے ہمیشہ فاسٹ بولرز کی سرزمین کہا جاتا ہے اس لسٹ میں اپنا ایک بھی بولر شامل کر پائے گا یا اس بار حقیقت پاکستانی فینس کو مایوس کر دے گی؟ آج ہم صرف رائے نہیں دیں گے بلکہ اعداد و شمار، بڑے میچز، ورلڈ ریکارڈز، کنسسٹنٹ پرفارمنس اور اصل امپیکٹ کی بنیاد پر اس ایرا کی بولنگ فیب فور کو سلیکٹ کریں گے۔ اور یقین مانیے اس لسٹ میں ایک ایسا فیصلہ بھی ہوگا جس پر شاید لاکھوں کرکٹ فینس اتفاق نہ کرے۔ تو آخر اس ایرا کے اصل فیب فور کون ہیں؟ آئیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ 2014 میں نیوزی لینڈ کے فارمر کرکٹر مارٹن کرو نے پہلی بار فیب فور کا نام استعمال کیا۔ اس وقت انہوں نے 4 ینگ بیٹرز کی نشاندہی کی تھی جن کے بارے میں ان کا ماننا تھا کہ آنے والے برسوں میں یہی پلیئرز ورلڈ کرکٹ پر راج کریں گے۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ ان کی پریڈکشن غلط نہیں تھی۔ وراٹ کوہلی، اسٹیو اسمتھ، جو روٹ اور کین ولیمسن واقعی اپنے دور کے عظیم ترین بیٹر بن کر سامنے آئے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ 11 سال گزرنے کے باوجود جب بھی فیب فور کا ذکر ہوتا ہے بات صرف بیٹرز تک محدود رہتی ہے۔ حالانکہ کرکٹ میں ایک مشہور جملہ ہمیشہ سے دہرایا جاتا ہے، بیٹر ون میچز بٹ بولر ون ٹورنامنٹس۔ اگر بولرز ہی بڑے ٹورنامنٹس میں اصل امپیکٹ پیدا کرتی ہیں تو پھر ان کا فیب فور کیوں نہیں بنا؟ اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہم نے کچھ امپورٹنٹ رولز بنائے ہیں اور ان رولز کی مدد سے آج ہم ایک بولنگ فیب فور بنائیں گے۔ رول نمبر 1 یہ ہے کہ ایک ملک سے صرف ایک بولر سلیکٹ ہوگا۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو ممکن ہے کہ صرف آسٹریلیا ہی اپنی مضبوط بولنگ لائن اپ کی وجہ سے اس لسٹ پر حاوی ہو جائے۔ رول نمبر 2 یہ ہے کہ ہم صرف شہرت یا سوشل میڈیا کی فیم کو نہیں دیکھیں گے بلکہ یہ جانچیں گے کہ کس بولر نے مشکل کنڈیشنز اور اہم میچز میں اپنی ٹیم کے لیے پرفارم کیا۔ رول نمبر 3 شاید سب سے امپورٹنٹ ہے، کنسسٹنسی اوور ہائپ، کیونکہ عظیم بولرز وہ نہیں ہوتے جو صرف ایک سال دنیا کو حیران کر دے بلکہ عظیم بولرز وہ ہوتے ہیں جو مسلسل کئی سالوں تک اپنی پرفارمنس سے مخالف ٹیموں کو پریشان رکھے۔ اب جب رولز اور سٹینڈرڈز بن چکے ہیں تو وقت آ گیا ہے اس بولر سے آغاز کرنے کا جس کے بارے میں شاید اس وقت پوری دنیا میں سب سے کم اختلاف پایا جاتا ہے۔ کیا جسپریت بمراہ واقعی اس دور کے نمبر 1 بولر ہیں یا ابھی بھی اس میں کچھ بحث باقی ہے؟ اگر اس ایرا کی بولنگ فیب فور میں ایک ایسا نام ہے جس پر شاید دنیا کے زیادہ تر کرکٹ ایکسپرٹس متفق ہیں تو وہ ہیں جسپریت بمراہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر بمراہ میں ایسی کیا خاص بات ہے جو انہیں تمام بولر سے مختلف بناتی ہے؟ کیا صرف ان کی منفرد بولنگ ایکشن یا پھر ان کے ریکارڈز یا پھر وہ ٹیلنٹ جس کی وجہ سے دنیا کے سب سے بڑے بیٹرز بھی ان سے ڈرتے ہیں؟ جسپریت بمراہ نے اپنے کیریئر کے آغاز سے ہی ثابت کر دیا تھا کہ وہ ٹریڈیشنل فاسٹ بولر نہیں ہے۔ ان کا شارٹ رن اپ، غیر معمولی ایکشن اور بال کو دونوں طرف سوئنگ کرانے کی صلاحیت نے بیٹرز کے لیے ہر بال کو ایک نئے امتحان بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ چند ہی سالوں میں وہ صرف انڈیا کے نہیں بلکہ دنیا کے خطرناک ترین فاسٹ بولرز میں شمار ہونے لگے۔ لیکن صرف بولنگ ایکشن کسی پلیئر کو عظیم نہیں بناتا، اصل امپیکٹ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہی بولر بڑے میچز میں اپنی ٹیم کے لیے میچ ونر ثابت ہو، اور بمراہ نے یہی کام بار بار کیا، چاہے آسٹریلیا کی تیز وکٹیں ہوں، انگلینڈ کی سوئنگ کرتی کنڈیشنز، ساؤتھ افریقہ کی باؤنسی وکٹس یا ویسٹ انڈیز کی مشکل گراؤنڈز۔ بمراہ نے تقریباً ہر بڑے ملک میں جا کر ثابت کیا کہ ان کی کوالٹی صرف ہوم کنڈیشنز تک محدود نہیں، ریکارڈز بھی ان کے بہترین بولنگ کی گواہی دیتے ہیں۔ صرف چند سالوں میں وہ 200 سے زائد ٹیسٹ وکٹ حاصل کر چکے ہیں اور ان کا بولنگ ایوریج 20 سے بھی کم رہا، جو ماڈرن ایرا کے کسی بھی فاسٹ بولر کے لیے غیر معمولی سمجھی جاتی ہے۔ یہی نہیں، وہ کرکٹ ہسٹری کے پہلے بولر بنے ہیں جنہوں نے تینوں فارمیٹس میں نمبر 1 رینکنگ حاصل کی۔ اس لیے اس لسٹ کا پہلا نام ہے جسپریت بمراہ۔ لیکن اب کہانی مزید دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ اگلی سلیکشن آسان نہیں ہوگی۔ کیا آسٹریلیا کی نمائندگی مچل سٹارک کریں گے جنہوں نے سالوں تک اپنی سپیڈ اور یارکرز سے دنیا پر راج کیا، یا پھر پیٹ کمنز جنہیں ماڈرن ٹیسٹ کرکٹ کا سب سے مکمل فاسٹ بولر کہا جاتا ہے، یا جوش ہیزل ووڈ جن کی لائن اینڈ لینتھ آج بھی مثال سمجھی جاتی ہے؟ رولز کے مطابق صرف ایک ہی
ऑस्ट्रेलियाई बॉलर इस लिस्ट में जगह बना सकता है, लेकिन वो कौन होगा? अगर सिर्फ रिकॉर्ड्स देखे जाएं तो ऑस्ट्रेलिया अकेले ही इस लिस्ट में 2 या शायद 3 बॉलर्स भी शामिल कर सकता है। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड तीनों ने गुज़िश्ता कई सालों में ऑस्ट्रेलिया की कामयाबियों में गैर मामूली किरदार अदा किया, लेकिन हमारे रूल्स के मुताबिक हम हर टीम से सिर्फ एक ही बॉलर चूज कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि इन तीनों में से वो एक कौन है जो इस एरा की बॉलिंग फैब 4 में जगह बनाने के सबसे ज्यादा हक रखता है। पैट कमिंस ने टेस्ट क्रिकेट में शानदार एवरेज, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और कप्तानी के साथ अपनी टीम को कई हिस्टोरिक मैचेस जितवाए। जोश हेजलवुड अपनी बेमिसाल लाइन एंड लेंथ की वजह से दुनिया के मुश्किल तरीन बॉलर्स में शुमार होते हैं, लेकिन जब बात प्रेशर मोमेंट्स की आती है तो सबसे पहले एक ही नाम जुबान पर आता है और वो है मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क ने 2010 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा। स्टार्टिंग में उनके पास स्पीड तो थी, लेकिन वो कंसिस्टेंसी मौजूद नहीं थी जो एक बॉलर को ग्रेटेस्ट बनाती है। कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स का ख्याल था कि शायद वो सिर्फ एक आम बॉलर साबित होंगे जो वक्त के साथ साथ क्रिकेट से गायब हो जाएगा, लेकिन फिर आया 2015 वर्ल्ड कप। यही वो लम्हा था जिसने मिचेल स्टार्क के कैरियर को हमेशा के लिए बदल दिया। 145 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड, खतरनाक स्विंगिंग यॉर्कर्स, तेज बाउंसर्स, स्टार्क इस पूरे टूर्नामेंट में तकरीबन अनप्लेएबल दिखाई दिए। सिर्फ 8 मैचेस में 22 विकेटें हासिल करके उन्होंने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में इम्पोर्टेंट रोल अदा किया, बल्कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी अपने नाम किया। लेकिन ग्रेट प्लेयर सिर्फ एक टूर्नामेंट से नहीं बनते। असल ग्रेटनेस ये है कि आप हर बड़े स्टेज पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए। यही वजह है कि जब भी आईसीसी नॉकआउट मैचेस या फाइनल्स की बात होती है तो मिचेल स्टार्क का नाम सबसे पहले नजर आता है। प्रेशर जितना बढ़ता है, मिचेल स्टार्क की बॉलिंग उतनी ही खतरनाक हो जाती है। यही एबिलिटी उन्हें दूसरे बॉलर से मुख्तलिफ बनाती है, चाहे नई बॉल हो या पुरानी, चाहे सामने विराट कोहली हो, जो रूट, बेन स्टोक्स या दुनिया का कोई और बैटर। मिचेल स्टार्क के सामने हर एक को डिफेंसिव अंदाज में खेलना पड़ता है और यही वो रिस्पेक्ट है जो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को हासिल होती है। इसी दौरान उन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में मिलाकर 700 से ज्यादा इंटरनेशनल विकेटें भी हासिल की और खुद को मॉडर्न एरा के मुकम्मल तरीन फास्ट बॉलर्स में शुमार कर लिया। इसलिए अगरचे पैट कमिंस और जोश हेजलवुड दोनों इस अवार्ड के मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन इम्पैक्ट, बड़े मैचेस की परफॉर्मेंस और कई सालों की मुसलसल कामयाबी को मद्देनजर रखते हुए ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी के लिए हमारी सिलेक्शन है मिचेल स्टार्क। अब तक हमारे लिस्ट में 2 नाम शामिल हो चुके हैं, जसप्रीत बुमराह और मिचेल स्टार्क, लेकिन अब भी 2 सीट्स खाली हैं और अब हम पहुंच रहे हैं एक ऐसे बॉलर की तरफ जिसने शायद शोर कम मचाया, मगर अपनी स्पीड, एग्रेशन और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस से दुनिया के बेहतरीन बैटर्स को कई साल तक परेशान रखा। अगर दुनिया के खतरनाक तरीन फास्ट बॉलर्स की बात होती है तो अक्सर फैंस के जहन में सबसे पहले स्पीड, यॉर्कर्स और बाउंसर्स आते हैं, लेकिन एक बॉलर ऐसा भी है जो ना ज्यादा सेलिब्रेट करता है, ना गैर जरूरी गुफ्तगू करता है। वो सिर्फ बॉल हाथ में लेता है, अपनी स्पीड बढ़ाता है और फिर दुनिया के बेहतरीन बैटर्स को एक एक करके पवेलियन वापस भेज देता है। वो नाम है कगिसो रबाडा। 2015 में जब रबाडा ने साउथ अफ्रीका के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज किया तो बहुत से लोगों ने उन्हें फ्यूचर का सुपरस्टार करार दिया। उस वक्त दुनिया भर में एक नई जनरेशन उभर रही थी। इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह थे, ऑस्ट्रेलिया के पास मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस थे, जबकि साउथ अफ्रीका को उम्मीद थी कि रबाडा उनकी फास्ट बॉलिंग की ट्रेडिशन को आगे लेके जाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि रबाडा ने न सिर्फ उनकी उम्मीदों को पूरा किया बल्कि कई बार उससे भी आगे निकल पड़े। अगर हम सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो रबाडा का रिकॉर्ड हैरानकुन हद तक मजबूत नजर आता है। उन्होंने अपने करियर के आगाज से ही तकरीबन हर बड़ी टीम के खिलाफ विकेटें हासिल की। रबाडा ने कभी भी कमजोर टीमों के खिलाफ अपने रिकॉर्ड्स बेहतर नहीं किए, बल्कि हमेशा दुनिया के बेहतरीन बैटिंग लाइनअप को चैलेंज किया। उनकी स्पीड मुसलसल 140 किलोमीटर पर आवर से ऊपर रहती है, लेकिन सिर्फ स्पीड ही उनकी ताकत नहीं है।
आखिरी लम्हे में बॉल को हल्का सा मूव कराना, बेमिसाल बाउंस पैदा करना और लंबे स्पेल्स में एक जैसी कंसिस्टेंसी बरकरार रखना, यही खसूसियात उन्हें मॉडर्न एरा के मुकम्मल फास्ट बॉलर्स में शुमार करती हैं। दिलचस्प बात यह है कि लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट में रबाडा को इतनी शोहरत नहीं मिली जितनी वो टेस्ट क्रिकेट में हासिल कर चुके हैं। IPL में भी कई बार उन्हें महंगा साबित होने पर तनकीद का सामना करना पड़ा और कुछ लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि उनका बेहतरीन वक्त गुजर चुका है, लेकिन रबाडा ने हमेशा तनकीद का जवाब अपनी बॉलिंग से दिया। अगर हम सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि इम्पैक्ट, कंसिस्टेंसी और मैच विनिंग एबिलिटी को देखें तो कगिसो रबाडा का नाम इस एरा की बॉलिंग फैब 4 में शामिल न करना शायद नाइंसाफी होगी। अब तक 3 नाम सामने आ चुके हैं, जसप्रीत बुमराह, मिचेल स्टार्क और कगिसो रबाडा, लेकिन अभी भी एक सीट बाकी है और इस सीट के लिए कई बड़े नाम मौजूद है। क्या ये अवार्ड ऑस्ट्रेलिया के किसी दूसरे बॉलर को मिल सकता है और क्या पाकिस्तान का कोई फास्ट बॉलर इस मायार पर पूरा उतर सकता है, या फिर वो आखिरी मकाम उस बॉलर के नाम होगा जिसने सालों तक न्यू बॉल को एक हथियार बनाकर दुनिया के बड़े से बड़े बैटर्स को बेबस कर दिया। अगला नाम शायद आपको हैरान न करे, लेकिन उसकी ग्रेटनेस की असल वजह जानकर जरूर हैरत होगी। अगर कोई एक बॉलर है जिसने तकरीबन एक दहाई तक न्यू बॉल को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया तो वो है ट्रेंट बोल्ट। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ट्रेंट बोल्ट को इस दौर के अजीम तरीन बॉलर्स में क्यों शुमार किया जाता है? क्या सिर्फ इसलिए कि वो बॉल को दोनों तरफ स्विंग करा लेते हैं, या इसलिए कि उनकी विकेटों की तादाद मुतासिर कुन है? हकीकत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। ट्रेंट बोल्ट ने जब न्यूजीलैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज किया तो वो एक टैलेंटेड लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जरूर थे, मगर अभी भी उन्हें खुद को दुनिया के सामने साबित करना था। फिर आया 2015 वर्ल्ड कप और इसी टूर्नामेंट ने ट्रेंट बोल्ट को इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे खतरनाक बॉलर्स में शुमार कर दिया। न्यू बॉल से उनकी स्विंग इतनी खतरनाक थी कि दुनिया के बड़े से बड़े ओपनर्स भी क्रीज पर कॉन्फिडेंस के साथ खड़े नजर नहीं आते थे। इसी वर्ल्ड कप में उन्होंने 22 विकेट्स हासिल किए और टूर्नामेंट के सबसे कामयाब बॉलर्स में शामिल रहे। लेकिन ट्रेंट बोल्ट की असल पहचान सिर्फ एक वर्ल्ड कप से नहीं बनी। अगले कई सालों तक उन्होंने हर फॉर्मेट में न्यूजीलैंड की बॉलिंग अटैक को लीड किया। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो मैच के पहले ही चंद ओवर्स में मुखालिफ टीम के बैटिंग लाइनअप को हिलाकर रख देते थे। कई बड़े ICC टूर्नामेंट्स में उन्होंने न्यूजीलैंड को फाइनल और सेमीफाइनल तक पहुंचाने में इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। 2019 वर्ल्ड कप में भी उनकी बॉलिंग ने कई मजबूत बैटिंग लाइनअप्स को मुश्किलात में डाल दिया। यही वजह है कि जब भी इस एरा की बॉलिंग फैब 4 की बात होती है तो सिर्फ स्पीड या विकेट्स काफी नहीं होती, हमें ऐसे बॉलर्स की जरूरत होती है जिसने सालों तक दुनिया के बेहतरीन बैटर्स की जहनों में खौफ पैदा किया हो, और ट्रेंट बोल्ट ने ये काम मुसलसल किया। इसलिए हमारे लिस्ट का चौथा और आखिरी नाम है ट्रेंट बोल्ट। अब हमारी फैब 4 मुकम्मल हो चुकी है, जसप्रीत बुमराह, मिचेल स्टार्क, कगिसो रबाडा और ट्रेंट बोल्ट। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, पाकिस्तान जिसे फास्ट बॉलर्स की सरजमीन कहा जाता है, इस लिस्ट में अपना एक भी बॉलर क्यों शामिल नहीं कर सका? क्या शाहीन शाह अफरीदी अब भी इस मायार तक नहीं पहुंचे, या उन्हें सिर्फ वक्त की जरूरत है? जब भी दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स की बात होती है तो पाकिस्तान का नाम खुद ब खुद बहस का हिस्सा बन जाता है। आखिर यही वो सरजमीन है जहां से वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ जैसे गैर मामूली बॉलर्स निकले। इसलिए आज भी पाकिस्तानी फैंस का मानना है कि मौजूदा दौर के बॉलिंग फैब 4 में भी पाकिस्तान का एक नाम जरूर होना चाहिए। और जब मौजूदा जनरेशन की बात होती है तो सबसे पहले जहन में एक ही नाम आता है, शाहीन अफरीदी। लेकिन क्या सिर्फ फेम या चंद यादगार स्पेल्स किसी बॉलर को फैब 4 में जगह दिलाने के लिए काफी होती है? हकीकत ये है कि इस लिस्ट का मायार सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि कई सालों की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, बड़े मैचेस में इम्पैक्ट और रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन अब आखिरी फैसला हमारा नहीं, आपका है। अगर आपको इस दौर की बॉलिंग फैब 4 सेलेक्ट करनी हो तो क्या आप भी यही 4 नाम चुनेंगे, या आपकी लिस्ट में कोई और बॉलर जगह बनाता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि हो सकता है अगली बड़ी बहस आपकी राय से शुरू हो जाए। और अगर आपको ऐसी ही क्रिकेट डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो क्रिकेट जर्नी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम क्रिकेट के एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिस पर शायद आज तक किसी ने इस अंदाज में बात न की हो।